Good morning everyone. Today I will be discussing the beta blockers. So we can see from the diagram, the first diagram only, beta 1, we have only one heart, so it's beta 1 only present in the heart, and beta 2, two lungs are there, so beta 2 receptors is there in the lungs. Other receptors are also there, beta 1 other places also there, that we will see later on, but these two you have to remember initially. So these are the competencies what I will cover today. This competency is according to MBBS curriculum. So this competency we will cover today, and in that the beta blockers are the agents, and the beta blockers in cardiac condition and non-cardiac condition, and some other beta blockers we will discuss. So first of all, let us see the various receptors of beta. So beta 1 receptors, and we have 3 beta receptors, beta 1, beta 2 and beta 3. So where is the beta 1 receptor is located? First was in the heart, one was the heart. So it's located in the heart, and its main role in the heart is increase the inotropic and chronotropic effect, and it increase the AV node conduction velocity also. So this is the positive inotropic, chronotropic and dromotropic effect seen with the beta 1 when it is stimulated in the heart. And the other main location in beta 1 is the juxtaglomerular cells. This is the JG cells, juxtaglomerular cells of the kidney. In the kidney, the beta 1 receptors are there. This is the juxtaglomerular cells. This is the juxtaglomerular cells. You can demarcate this one, juxtaglomerular cells present in the kidney. So this role of this is to increase the renin. When renin is increased, and this will lead to the hypertension. So its role in the hypertension. So you have to remember the kidney JG cells are present and increased in renin release with the help of beta 1 receptor. The second receptor is the beta 2 receptor, and beta 2 receptors not only present in the bronchial smooth muscle, I have told you the initial diagram, not only in the lungs but the other places also, like in the vascular smooth muscles it will cause the relaxation करेगा तो vasodilation करेगा, तो beta 2 की वजह से vasodilation होता है. This you have to remember because हर जगह ये काम आएगा, अभी जब uses पढ़ेंगे then also it will come across. In the ciliary muscles of the eye में relaxation करता है, और तभी हम लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है. मीन्स ग्लाइकोजन को मतलब इट्स इंक्रीज इन ग्लूकोज को बढ़ाता है ब्लड में शुगर को बढ़ाता है. तो लीवर बीटा 2 रिसेप्टर्स. सो व्हेन वी गिव द बीटा ब्लॉकर्स तो हाइपोग्लाइसीमिया इसी के कारण होता है, बिकॉज लीवर से ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है. ग्लाइकोजिनोलाइसिस मेथड मीन्स इट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना. एंड इंटेस्टाइन में मोटिलिटी बढ़ाता है, एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को ये देख चुके हैं, जब हम बीटा 2 को स्टिमुलेट करेंगे तो ब्रोंको डायलेटेशन होगा. तो एस्थमा में इसका रोल है, तभी बीटा 2 एगोनिस्ट दिया जाता है एस्थमा में, क्योंकि बीटा 2 ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में होता है, और दैट विल लीड टू द ब्रोंको डायलेटेशंस. क्लियर? The third receptor is the beta 3 receptor. Beta 3 receptors is present in two sites. One is the adipocytes and one is the urinary bladder. In the adipocyte, it will cause the lipolysis. It will break down the fat of your body in the adipocyte. In the urinary bladder, it will relax the detrusor muscle. What will happen with the relaxation of detrusor muscle? So relaxation, when there is a overactive bladder, means the bladder activity is more. When the bladder activity is more, it will cause more frequent urination. When you will relax the detrusor, the frequency of urine will decrease. So beta 3 agonists are there. We have the beta 3 agonist available in the market in the name of Mirabegron. So our concerned topic today is the beta blockers. So we don't have beta 3 blockers till now. So now beta blockers, how to classify, and this is a very important thing, because it's very difficult to remember the beta blocker, the name of the beta blockers, classification of the beta blockers. Basically, initially we were having the propanol as a beta blocker. The propanol is the prototype, and it's a non-selective beta blocker. Non-selective beta blocker was there initially, then it was called the first generation, then came the cardioselective beta blocker, and now one more beta blocker is there that we will see later on. So non-selective beta blocker, we have the propanol, pindalol, penbutolol, nodelol, timolol, alprindol, oxyprindol. We will try to remember the cardioselective beta blocker, then the other will go on to the non-selective if we remember the cardioselective beta blocker.
In the cardioselective beta blocker, this is the mnemonic which what I have made, new cardio or myoselective, because it's metoprolol is also there, that's why myoselective is there. Beta is betoxolol blocker, bisoprolol. Acting is acebutolol and atenolol, exclusively esmolol. So these are the cardioselective beta blockers, new cardio or myoselective beta blocker acting exclusively on beta 1 receptor, nebivolol, celiprolol, metoprolol, betoxolol, bisoprolol, acebutolol, atenolol and esmolol. This esmolol is very important. This is the extremely short acting. You can remember this with extremely short extremely short acting beta blocker is the esmolol. It's a very short half life given only with the IV route. So this is the classification of first and second generation. Now we have to classify first let us see the various advantages of selective over non-selective. Selective came later on, non-selective was the initial one. So what were the advantages of selective over non-selective? Lower risk of causing bronchoconstriction, because I have told you beta 2 receptors was present in the bronchial smooth muscles. So beta 2 receptor was causing vasodilatation. When we are giving the non-selective blocker, it will block the beta 2 receptor also, so it will inhibit the vasodilatation. So it will cause the it will inhibit the vasodilatation also and bronchodilation also. So lower risk of causing bronchoconstriction, this is beta 2 mediated bronchodilation, and beta 2 mediated vasodilatation also there. This is beta 2 mediated vasodilatation. Second is the non-selective beta blockers avoided in diabetics. Why we are avoiding it diabetics? The reason is, two main reason is there, because I have told you beta 2 receptor was present in the liver was causing increased in glucose. Now if we are giving the non-selective beta blocker, it will inhibit the glucose, it will again cause hypoglycemia. In diabetics, if the patient was having hypoglycemia, then it will inhibit the beta 2 mediated glycogenolysis, and the one more reason is it will mask the warning sign of hypoglycemia. Warning sign of hypoglycemia is because of both the receptor beta 1 and beta 2. Beta 1 is causing tachycardia and beta 2 is causing essential tremor. But here we are giving the non-selective beta blocker. Non-selective beta blocker here we are giving, so it will inhibit both the thing, tachycardia and essential tremor. But if you are but don't think that if you are giving the selective beta blocker, the warning sign तब भी रहेगी. No, warning sign जो tachycardia beta 1 की वजह से हो रहा है वो तब भी चला जाएगा अगर if you are giving the selective beta, but ये वाला warning sign रहेगा. तो भी वी कैन डिटेक्ट द हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड अगर हो रहा है तो भी वी कैन डिटेक्ट, बट अगर नॉन सेलेक्टिव दे दिए तो वार्निंग साइंस फिर नहीं रहेगा एंड हाइपोग्लाइसीमिया करता है बिकॉज बाय इनहिबिटिंग बीटा 2 मेडिएटेड ग्लाइकोजिनोलाइसिस. और क्या एडवांटेज है? अब ये बीटा 2 से वजह से वेसोडाइलेटेशन हो रहा है और ब्रोंकोडाइलेटेशन हो रहा है, ये हमने देख लिया था. तो अगर हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो फिर से वही रेनॉल्ड्स डिसीज़ होने लग जाएगा. तो नॉन सेलेक्टिव की वजह से रेनॉल्ड्स डिसीज़ होने लग जाता है और नॉन सेलेक्टिव की वजह से लिपिड प्रोफाइल में भी डीअरेंजमेंट होने लगता है, कैन एडवर्सली अफेक्ट द सीरम लिपिड प्रोफाइल. और तीसरा और लास्ट है एक्सरसाइज कैपेसिटी, बिकॉज बीटा 2 में वैस्कुलर बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं. स्केलेटल मसल्स है उसमें जो ब्लड वेसल्स चल रही हैं उनमें बीटा 2 की वजह से वेसोडाइलेटेशन होता है. जब वेसोडाइलेटेशन होगा तो ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तभी ब्लड सप्लाई, अब तुम इसको इनहिबिट कर दे रहे हैं, हम इसको इनहिबिट कर दे रहे हैं तो एक्सरसाइज की कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड वेसल से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है. वैस्कुलर बीटा 2 हम ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसके कारण एक्सरसाइज कैपेसिटी इम्पेयर हो रही है. ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस विद व्हाट वी आर हैविंग द सेलेक्टिव ओवर द नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स. नाउ the another generation which have come recently is the third generation beta blocker, that is having some additional action also. एंड थर्ड जनरेशन में हम एक हमारे पास है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी, जिसकी मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है और लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं. और दूसरी है इंट्रिंसिक एगोनिस्टिक एक्टिविटी, मतलब बीटा ब्लॉकर के साथ बीटा एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी है. आप सोचिए बीटा ब्लॉकर के साथ बीटा एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी है, तो इसे इंट्रिंसिक एगोनिस्टिक एक्टिविटी कहते हैं. तीसरा है लिपिड इनसॉल्युबिलिटी, अगर लिपिड सॉल्युबल होता है तब ड्रग कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड इफ द beta blocker are lipid soluble, it will cross the blood brain barrier, it will cause adverse effect like insomnia. But here the beta blockers are made which are the lipid insoluble drug,
लिपिड इनसॉल्युबल होगा उसके एडवर्स इफेक्ट उसके अब कम होंगे, तो दैट्स वाई हियर इज बीटा ब्लॉकर विद लिपिड इनसॉल्युबिलिटी। तो मेम्ब्रेन एक और है दैट वी विल सी, एक अब मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग में ये नाम है, थोड़े डिफिकल्ट है नाम याद करना, और लिपिड्स इनसॉल्युबिलिटी में ये है नोडोलॉल, पेंडोलॉल, एसिबिटोलॉल, एंड इनको याद करने का तरीका लेकिन है इंट्रिंसिक एगोनिस्टिक एक्शन का याद करने का तरीका है कंटेन लो और पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी, ठीक है। कंटेन सेलिप्रोलॉल एंड कार्टिलॉल इज द कंटेन, लो इज द लेबिटोलॉल, पार्शियल इज द पेंडोलॉल, पेनबिटोलॉल, एंड एगोनिस्ट एसिबिटोलॉल, एक्टिविटी एल्पिनोलॉल। सो दिस यू कैन रिमेंबर, कंटेन लो और पार्शियल, लो और पार्शियल भी है क्योंकि पिंडोलॉल, पेनबिटोलॉल भी है, और लेबिटोलॉल भी इम्पॉर्टेंट है जो कि जिसमें इंट्रिंसिक एगोनिस्टिक या बीटा एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी होती है। ये अभी और भी डिटेल, क्योंकि ये कॉम्पिटेंसी में है, ये कॉम्पिटेंसी में ये क्वेश्चन है, तो वी विल सी दिस ऑल्सो इन डिटेल। एक और है बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी। अब वैसोडाइलेटेशन किस किस तरह से हो सकता है, कई तरह से वैसोडाइलेटेशन हो सकता है। मैंने ये जो क्लासिफिकेशन बनाया है ये तो बहुत जगह बहुत चीज़ों को देख के बनाया गया, किस तरह से याद करा जाए कि कैसे कैसे क्लासीफाई करना है बीटा ब्लॉकर को, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में फिर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों। किसी किताब में वैसोडाइलेटरी को अलग कर दिया, वैसोडाइलेटरी को इसमें ही रखे हैं थर्ड जनरेशन में, और लेकिन वैसोडाइलेटरी में भी किस तरह से वैसोडाइलेटेशन हो सकता है, किस तरह से वैसोडाइलेटेशन हो सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को हम बढ़ा सकते हैं तो वैसोडाइलेटेशन हो सकता है, कैल्शियम के इन्फ्लक्स को हटा दें तो वैसोडाइलेटेशन हो सकता है। ये देखिए, पहला कैल्शियम आ रहा है अंदर, कैल्शियम अंदर आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इसको हम इनिबिट कर दें तो कैल्शियम को इनिबिट कर दें, वैसोडाइलेटेशन हुआ। वैसोडाइलेटेशन इसकी वजह से भी हो रहा है, बीटा 2 एगोनिस्ट की वजह से, बीटा 2 रिसेप्टर था ब्लड वेसल्स में और ब्रोंकस में, उसकी वजह से भी हो रहा है, तो उसको मैंने इनिबिट कर दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से एनो वैसोडाइलेटरी है, वैसोडाइलेटेशन होगा। पोटेशियम अंदर जाएगा तो पोटेशियम बाहर आ रहा है, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल की वजह से रिलैक्सेशन, तो भी वैसोडाइलेटेशन। अल्फा 1 ब्लॉकर अगर हम दे रहे हैं तो भी वैसोडाइलेटेशन हो रहा है। तो हमारे पास ड्रग कौन कौन सी है उसको याद कैसे करेंगे। कैल्शियम की एंट्री को हमें ब्लॉक करना है, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे तो वैसोडाइलेटेशन हो जाएगा, तो कैल्शियम ब्लॉकर, C इज फॉर कैल्शियम, C इज फॉर कार्बिडोलॉल, ब्लॉकर बिटॉक्सोलॉल। तो कार्बिडोलॉल एंड बिटॉक्सोलॉल दीज आर द कैल्शियम एंट्री ब्लॉकर अलॉन्ग विद द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी है और साथ में कैल्शियम एंट्री ब्लॉकर भी है, ठीक है। तो एडवांटेज इसका ये है। बीटा 2 एगोनिज्म कौन से है, A B C करके याद कर लीजिएगा, A फॉर एगोनिज्म, B फॉर बीटा 2 और C फॉर कार्टिलॉल एंड सेलिप्रोलॉल, ये बीटा 2 एगोनिज्म प्रॉपर्टी है। नाइट्रिक ऑक्साइड, N फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड, N फॉर नेबिवोलॉल, ये बहुत सिंपल है, N फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड, N फॉर नेबिवोलॉल, ये अलॉन्ग बीटा ब्लॉकर अलॉन्ग विद नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन। पोटेशियम चैनल ओपनर, नाम अगर आप पूरा लोगे ना, पोटेशियम इज फॉर टिलिसोलॉल, थोड़ा सा सिमिलर सा टर्म साउंड करेगा, तो पोटेशियम इज फॉर टिलिसोलॉल इज द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर अलॉन्ग विद द बीटा ब्लॉकर्स। एंड अल्फा 1 ब्लॉकर याद करेंगे तो हमारे पास जैसे कैल लैब होती है, फार्माकोलॉजी में कैल लैब एक होती है, अगर उससे याद कर लेंगे आप तो याद हो जाएगा, कार्बिडोलॉल, अल्फा 1 और लेबिटोलॉल, कार्बिडोलॉल एंड लेबिटोलॉल बीटा ब्लॉकर अलॉन्ग विद अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, अल्फा 1 ब्लॉकिंग से वैसोडाइलेटेशन। एक और आता है एंटीऑक्सीडेंट जिसकी प्रॉपर्टी होती है और वो है कार्बिडोलॉल, ठीक है। तो ये तो आपको ये याद कर लीजिएगा, आसान है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा 2 एगोनिज्म, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, पोटेशियम चैनल ओपनर, अल्फा 1 ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी। मैं इसकी बात कर रहा था कि बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्पथोमाइमेटिक एक्टिविटी या फिर पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी। आप ये डायग्राम देखें, जैसे प्योर बीटा ब्लॉकर होगा तो इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई स्टिमुलेशन नहीं हो रहा है। बीटा ब्लॉकर के साथ लेकिन हम थोड़ा पार्शियल एगोनिस्ट भी दे रहे हैं, पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी है, तो डॉटेड लाइन दिखी हुई है, तो पार्शियल स्टिमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब है रिसेप्टर पे बाइंड करके पार्शियल स्टिमुलेशन भी हो रहा है, सिर्फ ब्लॉकर ही नहीं पार्शियल स्टिमुलेशन भी कर रहा है। तो एक्टिवेट बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर सब मैक्सिमली। क्या एडवांटेज होगा इसका, पार्शियल एगोनिस्ट की वजह से जो ब्लॉकर्स की वजह से बीटा 2 को जब ब्लॉक कर रहे थे तो कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे थे, तो उन कंडीशंस में हम दे सकते हैं, जैसे एस्थमा की कंडीशंस में दे सकते हो। अगर एल्डरली पेशेंट्स होगा, जो एल्डरली पेशेंट जिसमें बर्डिकार्डिया प्रोमिनेंट होगा, अब तुमने प्योर बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो हार्ट की पूरी डिप्रेस हो गई,
तो उससे कारण क्या होगा, सीवियर ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा, अगर वो ब्रेडिकार्डिया है पहले से और ब्रेडिकार्डिया में चला जाएगा एल्डरली पेशेंट। लेकिन अगर तुम पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी वाला भी दोगे बीटा ब्लॉकर, तो उससे इसकी लाइफ भी प्रोलॉन्ग हो जाएगी और सीवियर ब्रेडिकार्डिया में भी नहीं जाएगा। दूसरा, विड्रॉल रिएक्शन कम होगा। जब हम कंटिन्यूस बीटा ब्लॉकर देते हैं तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, बीटा के जो रिसेप्टर्स हैं ये बढ़ जाते हैं, सुपर सेंसिटिविटी उसे कहते हैं। तो सेंसिटिव इतने हो जाते हैं वो कि कुछ भी आएगा तुरंत एक्शन करना शुरू कर देंगे वो। तो क्या होता है कि जब हम बीटा ब्लॉकर को विड्रॉ करते थे, जब हम सडन विड्रॉल करते हैं बीटा ब्लॉकर को, तो सुपर सेंसिटिविटी की वजह से रिएक्शंस डेवलप होने लग जाते हैं, हाइपर रिएक्शंस डेवलप होने लग जाते हैं। उसके लिए अगर पार्शियल एगोनिस्टिक भी रहेगा तो सुपर सेंसिटिविटी कभी डेवलप ही नहीं होगी। सिर्फ ब्लॉकर नहीं है, एगोनिस्टिक भी है, इसीलिए सुपर सेंसिटिविटी कभी डेवलप नहीं होगी, तो विड्रॉल रिएक्शंस भी कम होंगे। तीसरा हो गया ना अस्थमा, क्योंकि बीटा टू ब्लॉकर नहीं दे रहे हैं हम एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी दे रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन ऑफ अस्थमा नहीं होगा। और चौथा, लेस वर्सनिंग ऑफ प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल भी डीएनएच कम होता है। तो इंट्रिंसिक सिम्प्टोमैटिक एक्टिविटी बेसिकली ये याद रखना है कि जिसमें ब्रेडिकार्डिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें एस्थमेटिक्स ज़्यादा होते हैं, उनमें हम विड्रॉल रिएक्शंस कम करना है, तो उसमें हमें ये एडवांटेज है बीटा ब्लॉकर विद ISA। डिसएडवांटेज क्या होता है, कोई डिसएडवांटेज भी होता होगा। डिसएडवांटेज है नॉट सुटेबल फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस ऑफ MI, क्योंकि ये एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी रख रहा है, तो इसीलिए MI की प्रोफाइलेक्सिस में इसको नहीं सुटेबल, और माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में भी सुटेबल नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि सेरिब्रल ब्लड वेसल, माइग्रेन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहती है, वैसोडाइलेटेशन होता है सेरिब्रल ब्लड वेसल्स का, ये भी डायलेट कर दे रही है, क्योंकि एगोनिस्टिक एक्टिविटी है बीटा 2, इसीलिए डिसएडवांटेज ये है इसका। तो ये अब याद कर लीजिएगा कि कौन से बीटा ब्लॉकर विद इंट्रिंसिक सिम्प्टोमैटिक एक्टिविटी है, कंटेन लो और पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, सेलिप्रोलॉल, लेबिटोलॉल, पिंडोलॉल और ऐसे करके एगोनिस्टिक एक्टिविटी, एसीब्यूटोलॉल, तो कंटेन लो और पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी। अब बीटा ब्लॉकर को दो यूजेस कह सकते हैं। अब जनरली अगर आप देखोगे कोई भी कार्डियक कंडीशन अगर बोलोगे तो उसमें बीटा ब्लॉकर है, जो भी कार्डियक कंडीशन आपको याद आएगी सब में जनरली बीटा ब्लॉकर है। एंजाइना, MI, हाइपरटेंशन, एरिथमिया, एओर्टिक एन्युरिज्म, HOCM, माइट्रल वेल, जनरली सब में है। लेकिन कुछ नॉन कार्डियक कंडीशंस हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर इंडिकेटिव है। ग्लाउकोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, देखेंगे अभी इसको क्यों दिया जाता है। ग्लाउकोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस, माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में, एंजाइटी, एसेंशियल ट्रेमर, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स है इसीलिए, एकेथेसिया, अल्कोहल ओपियोइड विड्रॉल एंड वेरिसियल ब्लीड, जो पोर्टल हाइपरटेंशन में ब्लीड होता है उसमें भी बीटा ब्लॉकर्स का रोल है। तो एंजाइना पेक्टोरिस में कैसे काम करती है ये, ब्लॉक्स द बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द हार्ट, बीटा 1 को ब्लॉक किया, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो गया। एंजाइना में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन कंजम्पशन कम करा, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा नहीं करने देगा, तो बीटा 1 रिसेप्टर उसमें हार्ट में ब्लॉक करने की वजह से मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो गया। हाइपरटेंशन में कैसे एक्ट किया, बीटा 1 रिसेप्टर वाज आल्सो प्रेजेंट इन द जेजी सेल्स में भी प्रेजेंट था, जो कि रेनिन को प्रोड्यूस कर रहा था, रेनिन के सिक्रीशन को कम कर दिया बीटा 1 की वजह से। सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को भी कम कर दिया, प्री साइनेप्टिक बीटा रिसेप्टर, प्री साइनेप्टिक का कंसेप्ट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि प्री साइनेप्टिक अल्फा रिसेप्टर, प्री साइनेप्टिक बीटा रिसेप्टर। एरिथमियाज, हार्ट रेट ऑटोमेटिसिटी, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में SA नोड, AV नोड इन सब में प्रेजेंट होता है, तो हार्ट रेट ऑटोमेटिसिटी पे कम कर देगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। CCF में डिक्रीज रेनिन सिक्रीशन और उसके वजह से विच इन टर्न रिड्यूसेस द हार्ट ऑक्सीजन डिमांड। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में देखेंगे CCF में और कैसे रोल है, आगे देखेंगे। प्रिवेंट एरिथमिया एंड डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, एओर्टिक एन्युरिज्म में, HOCM में और माइट्रल वेल कोलैप्स। तो दीज आर द थिंग्स विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और नॉन कार्डियक कंडीशन में थायरोटॉक्सिकोसिस में क्यों प्रोपेनॉल इसलिए क्योंकि वो T4 को T3 में भी कन्वर्ट करने से इनहिबिट करता है, और ब्रेडिकार्डिया तो कम करेगा ही क्योंकि नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट है, तो जो थायरोटॉक्सिकोसिस में टेकीकार्डिया होगा उसको सही कर देगा, रिलीव्स टेकीकार्डिया होगा, ये टेकीकार्डिया होगा, दिस इज टेकीकार्डिया नॉट ब्रेडिकार्डिया। ग्लाउकोमा में इंट्राओकुलर प्रेशर कम कर देगा, कब इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता है, बट इंट्राओकुलर प्रेशर कम करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्वस ह्यूमर सिक्रीशन। माइग्रेन में भी मैकेनिज्म क्लियर नहीं है,
प्रोप्रानोल, लेकिन माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में यूज़ होता है। एंजाइटी 70% ऑफ द पेशेंट रिलीफ हो जाता है, देख रहे हैं, तो इसीलिए ये ड्रग ऑफ चॉइस भी है माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में। एंजाइटी एंड एसेंशियल ट्रेमर में इसका रोल है, अल्कोहल ओपिएट विड्रॉल में है, ब्लीडिंग एंड पोर्टल हाइपरटेंशन एंड फियोक्रोमोसाइटोमा, दैट वी विल सी, फियोक्रोमोसाइटोमा आल्सो वी विल सी। नाउ किस किस कंडीशन में कौन सी बीटा ब्लॉकर, अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लाउकोमा है, ग्लाउकोमा मतलब इंक्रीज इन इंट्राओकुलर प्रेशर, तो बीटा ब्लॉकर ग्लाउकोमा में दे सकते हैं, लेकिन कौन सी बीटा ब्लॉकर दे? ऑक्यूलर बीटा रिसेप्टर्स प्रेडोमिनेटली बीटा 2 सब टाइप, और ऑक्यूलर बीटा रिसेप्टर कौन सा था? बीटा 2 में देखा थे सीलियरी मसल्स ऑफ द आई, उसमें बीटा 2 था। सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर लाइक बिटॉक्सोलॉल विल हैव लेसर साइड इफेक्ट बट आर ऑल्सो लेस एफिकेशियस, क्योंकि हमें बीटा 2 को ब्लॉक करना है ना। सेलेक्टिव ठीक है, सेलेक्टिव है, मतलब अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो गया एडवर्स इफेक्ट तो कम आएगा, लेकिन एफिकेसी भी तो कम आएगी। क्यों? क्योंकि बीटा 2 सब टाइप है आई में, सिलियरी मसल्स में। टिमोलॉल, लीवोबिनोलॉल ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, और ये सब बहुत एफिकेशियस है, जो ये आई ड्रॉप के फॉर्म में है। बस डिसएडवांटेज इतना ही है कि नॉन सेलेक्टिव है, अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो गया आई में देते देते कहीं सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई ड्रग, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज कर सकती है। लेकिन अगर सेफ साइड रहना है तो बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं, बिटॉक्सोलॉल इसी का कंजीनर एक आता है लीवो बिटॉक्सोलॉल भी, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स। तो ये ग्लाउकोमा में, तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन वी हैव टू चूज कौन सी ड्रग हमें यूज़ करनी है, टिमोलॉल यूज़ करनी है क्या, चाहे बीटा 1 सेलेक्टिव यूज़ करनी है, तो ये आप देखना पड़ेगा। फिर CHF में, एक्यूट CHF में नहीं देना है, वैसे ही हार्ट कंपनसेट है और तुम बीटा 1 बीटा ब्लॉकर दे रहे हो तो उसका हार्ट की और एफिकेसी खत्म, हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हो गया है CHF तो एक्यूट में नहीं देना है, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट CHF में इसका रोल है। रूल क्या है? रूल ये कहा जाता है धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए, धीरे धीरे बीटा ब्लॉकर दीजिए, कम डोज में दीजिए, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाइए और लॉन्ग टर्म के लिए दीजिए। एक्यूट में काम नहीं करेगी और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी पेशेंट को। तो रूल ये है, एक रूल याद रख लीजिए बीटा ब्लॉकर इन CHF में, इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म। ऑन शॉर्ट टर्म अगर यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बोला बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में है, बीटा 1 हार्ट के रिसेप्टर को तुमने ब्लॉक कर दिया है, उसका कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे, कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बीटा 2 जो वैसोडायलेटेशन है उसको भी ब्लॉक कर रहे हो, तो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब धीरे धीरे देते हैं तो इसका सब अपोजिट होने लग जाता है, तो फिर कार्डियक कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। ठीक, तो दैट्स वाई इंट्रोड्यूस ग्रेजुअली एंड मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म। कार्बिडोलॉल, नेबिवोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल ये बीटा ब्लॉकर्स ऑफ चॉइस हैं इन CHF में ये है, और इन ओरल ड्रग्स हैं, ओरल ड्रग्स अवेलेबल हैं ये फॉर द CHF। एंजाइना में, एंजाइना का एपिसोड हो रहा है तो वेरिएंट ऑफ प्रिंज मेटल एंजाइना में नहीं देना है। वेरिएंट ऑफ प्रिंज मेटल एंजाइना क्या होता है? वो एंजाइना होता है जहाँ पे कोरोनरी वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेन होता है, तो उसके कारण, अब क्योंकि वेरिएंट ऑफ, अब आप बीटा 2 को ब्लॉक कर दिए, बीटा 2 को ब्लॉक कर दिए, वैसोडायलेटेशन को फिर से ब्लॉक कर दिए, तो वो और एग्रेवेट हो जाएगा उसका एंजाइना। तो वेरिएंट ऑफ प्रिंज मेटल एंजाइना में नहीं देना है। स्टेबल एंजाइना में दे देंगे रिड्यूस द ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है, विच इज़ इंक्रीज बाय कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन एक्सेस है तो हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा रहेगा, इसके लिए हम ये दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ में मैं जैसे बोल रहा था कि पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस एक्यूट में तो बढ़ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ में पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि बीटा 2 की वजह से। ठीक है, बीटा ब्लॉकर विद अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी, तो हमें इसमें अगर चूज़ करना हो एंजाइना में कौन सी बीटा ब्लॉकर, तो ये थोड़ा सा बीटा ब्लॉकर विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी देंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि हम वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को इनिबिट करके वैसोडायलेटेशन करा रहे हैं। जब वैसोडायलेटेशन होगा तो और अच्छी एक्टिविटी आएगी। लेबिटोलॉल विद कार्बिडोलॉल, ABC, लेबिटोलॉल अल्फा ब्लॉकिंग, बीटा ब्लॉकर विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, लेबिटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल अ बेटर चॉइस फॉर बेटर, क्योंकि वैसोडायलेटेशन भी होगा। तो ये एंजाइना में चूज़ करना हो तो बीटा ब्लॉकर विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी इज मच बेटर। हाइपरटेंशन में बीटा ब्लॉकर का रोल पहले बहुत यूज़ करते थे बीटा ब्लॉकर को हाइपरटेंशन में, लेकिन अब उसका रोल बहुत अच्छा नहीं है। हाइपरटेंशन के लिए और भी अच्छी ड्रग्स हैं, तो लेकिन
देना है तो ठीक है दे सकते हैं, कुछ मैकेनिज्म है जैसे रेनिन को इनहिबिट करता है तो हाइपरटेंशन में काम कर सकता है, लेकिन कार्डियो सेलेक्टिव एंड बीटा ब्लॉकर विद वैसोडाइलेटिक प्रॉपर्टी यही प्रेफर कीजिएगा। अगर देना है हाइपरटेंशन में तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होगा वो वाला प्रेफर कीजिएगा, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स, लेकिन लेस एफिकेशियस है देन एस इनहिबिटर्स और ARBs। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर देखेंगे हाइपरटेंशन में तो एस इनहिबिटर्स और ARBs ही हैं, ठीक है। पहले ABC कहते थे, एस इनहिबिटर्स, ARBs, फिर बीटा ब्लॉकर, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लेकिन अब नहीं, पहले एस इनहिबिटर्स ARBs कहते हैं, अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, बाद में बीटा ब्लॉकर कहते हैं। तो बीटा ब्लॉकर बाद में नॉट कंसिडर्ड नाउ द फर्स्ट लाइन ड्रग इन हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन में भी इसका रोल है। तो कई सारे मैकेनिज्म हाइपरटेंशन के लिए तो उसका रोल एक मैकेनिज्म तो यही है कि रेनिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या होता है, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से कुछ पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, ये सब इफेक्ट आते हैं। तो प्रोपेनॉल इज द बीटा ब्लॉकर ऑफ चॉइस, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है एक तो, और दूसरा ये है कि पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनहिबिट करता है। जो ये एक्टिव फॉर्म है, T4 इज द एक्टिव फॉर्म, T3 इज द एक्टिव फॉर्म। ये जो T4 को T3 में कन्वर्ट होने से इनहिबिट करता है ये वाला प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑल्सो, सो ज़्यादा अच्छा है थायरोटॉक्सिकोसिस में प्रोपेनॉल। दोनों तरह से काम करता है, टेकिकार्डिया, ट्रेमर, एंजाइटी, पाल्पिटेशन, इनको भी कम करता है और साथ में कन्वर्जन को भी इनहिबिट करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा में लास्ट क्लास में बताए थे अल्फा ब्लॉकर के साथ में बीटा ब्लॉकर्स देना है ना, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर अगर देना है आर गिवन आफ्टर द अल्फा ब्लॉकर के बाद देना है। प्रोपेनॉल अगर मान लीजिए सिर्फ बीटा ब्लॉकर दे दिए तो क्या होगा, बीटा ब्लॉकर अगर सिर्फ दे दिए तो अल्फा की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होने लग जाएगा ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ बीटा मेडिएटेड वैसोडाइलेशन, तो और बीपी बढ़ जाएगा। अगर बीटा ब्लॉकर सिर्फ दे दिए, अल्फा की एक्टिविटी कोई अपोज करने वाला बचा नहीं, अल्फा ज़्यादा रहेगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ड्रग्स हैविंग बोथ, तो हम कोशिश करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में कि ऐसी ड्रग दे दें जो कि अल्फा और बीटा एक्टिविटी दोनों हो, ब्लॉकिंग एक्टिविटी, है ना। लेबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल तो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, क्योंकि हमको पता चल गया कि अगर हम सिर्फ बीटा ब्लॉक करेंगे तो वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से बीपी बढ़ जाएगा। तो हमें अल्फा और बीटा एक्टिविटी जो बीटा ब्लॉकर ऐसा हो जिसकी अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी हो वो दे दे तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा। दैट इज़ द लेबिटोलॉल एंड कार्बिडोलॉल, तो ये प्रेफर्ड करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज टू कंट्रोल कार्डियक मैनिफेस्टेशन ड्यू टू, क्योंकि एक्सेस ऑफ कैटेकोलामीन होगा, उसी की वजह से ये सारे मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ये जो टेकिकार्डिया है और हाइपरटेंशन है, एक्सेस ऑफ कैटेकोलामीन उसी की वजह से होता है। तो बीटा ब्लॉकर्स आर यूज टू कंट्रोल द कार्डियक मैनिफेस्टेशंस, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, ये सब। एरिथमियाज में भी बीटा ब्लॉकर का रोल है, और ये सारे उसके कारण हैं कि कैसे एरिथमिया में काम करता है। अब हमें पता चल गया ऐसे नोड AV नोड पे होता है बीटा रिसेप्टर्स, तो उसको ब्लॉक कर दिया तो हमने ऑटोमेटिसिटी को कम कर दिया, स्लोप ऑफ फेज 4 डिपोलराइजेशन कर दिया, हार्ट रेट कम हो गई, है ना। एरिथमियाज, टैकी एरिथमियाज जिन एक्सेस ऑफ रिदम टैकी एरिथमियाज में, डिप्रेस द AV कंडक्शन, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करना, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी भी होती है। बीटा ब्लॉकर की कुछ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर हाई डोज में देंगे तो भी मेम्ब्रेन, जैसे प्रोपेनॉल की मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी होती है। एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट। कौन कौन से, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये यूज़ करते हैं फॉर द PSVT के लिए, एटिनोलॉल एंड मेटोप्रोलॉल। और इसमोलॉल का क्या बताया था, एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर इसमोलॉल, और ये यूज़ किया जाता है, ये भी यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द एरिथमिया। शॉर्ट एक्टिंग होती है तो अपना ड्रग दिया, शॉर्ट एक्टिंग होती है, दैट्स वाई उसको IV ही दी जाती है, ओरल इसका नहीं है, इसमोलॉल IV दी जाती है, लोडिंग डोज दी जाती है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस डोज भी दी जाती है, ठीक है। थैंक यू।